جی السلام علیکم. مجھ سے ایک سوال لوگوں نے کیا کہ آپ اتنا عرصہ سسٹم میں رہے تو آپ نے خود کیوں نہیں کچھ کیا. دیٹ از اے لیجٹمیٹ کویسچن اینڈ آئی ٹیک دیٹ کویسچن. میں نے آج تک اس سبجیکٹ پہ اس لیے بات نہیں کی تھی کیونکہ مناسب نہیں لگتا کہ جس صورتحال میں آپ خود ہوں اس پہ آپ بات کریں تو یہ پرسیپشن یقیناً کریٹ ہو سکتی ہے کہ جی اس نے تو یہ کہنا ہی تھا. بٹ I think you are the best judge and you should judge. And since there are a lot of lessons to be learned from my personal experience, so I thought I will share it with you today. جیسے میں پہلے گزارش کر رہا تھا کہ جی 83% آف دا بجٹ والی بات کہ جی وہ کہاں جاتا ہے, کہاں جاتا is the spending side of the budget. But then there's an earning side of the budget too, and that is very important. Japan ورلڈ وار 2 کے بعد جاپان پہ ریسٹرکشن تھی کہ وہ 1% سے زیادہ اپنے بجٹ جو ہے وہ ڈیفنس پہ خرچ نہیں کر سکتا. وہ 1% ہی اتنا زیادہ ہو گیا. سو spending of the budget is certainly necessary, but then earning is very very necessary. Year 2000 میں, so let's come to my personal experience on this. ایئر 2000 میں کنٹری ڈائریکٹر تھے ورلڈ بینک کے پاکستان کے لیے یوشوپا کروک صاحب. یوشوپا کروک صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر پاکستان کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو امپروو نہیں ہوتا تو گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس وہ اسینشیل ریسورسز ہی نہیں ہیں جس سے وہ اپنی ہیومن ریسورس کی ڈیولپمنٹ پہ خرچ کر سکے, جس سے وہ ایجوکیشن پہ خرچ کر سکے, جس سے وہ انفراسٹرکچر پہ خرچ کر سکے, ہیلتھ پہ خرچ کر سکے. تو یہ بات سامنے آئی اور انہوں نے کہا کہ جی اگر یہ صورتحال جاری رہی تو اگلے 8-10 سال میں پاکستان انگورنبل ہو جائے گا. اینڈ آف کورس دس از نو راکٹ سائنس, ہونا ہی ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ کی جیسے میجورٹی آف دا پاپولیشن ڈس انفرینچائز ہوتی جاتی ہے, ان کا اسٹیک ان ٹو دا سسٹم نہیں رہتا, ان کو اس سسٹم سے بینیفٹ نہیں, انہیں جابس نہیں مل رہے, انہیں ان کی ایجوکیشن نہیں ہو رہی, یا جن کی ایجوکیشن ہو رہی ہے وہ ایڈیکویٹلی امپلائی نہیں ہو رہے, تو وہ ایک ریزنٹمنٹ سوسائٹی میں کریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اینڈ اسینشلی اٹس اے کلاس وار. تو یہاں سے جب یہ بات کی ورلڈ بینک نے تو اس وقت جنرل مشرف واز دا پریزیڈنٹ اینڈ دا فائنانس منسٹر آف دا کنٹری واز شوکت عزیز صاحب. پریزیڈنٹ صاحب نے ایک کمیٹی بنائی, شاہد حسین کمیٹی. شاہد حسین, اٹ واز اے ویری پاورفل کمیٹی. اٹ کمپرائزڈ آف سی بی آر, دا پرائیویٹ سیکٹر, لامس, بینکس, کچھ پرائیویٹ کنسلٹنٹس, اور انہوں نے ایک اسٹڈی کی کہ جی پاکستان کا ہم نے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کو کیسے بہتر کرنا ہے تاکہ گورنمنٹ کے پاس وہ اسینشیل ریسورسز آئیں کہ وہ اپنے ملک میں خرچ کر سکے. یہ رپورٹ پریزیڈنٹ صاحب کو سبمٹ ہوئی اینڈ اٹ واز کوائٹ اے فرائٹننگ رپورٹ کیونکہ ٹیکس سسٹمز کی انیفیشنسیز بہت ڈیٹیل میں, اینڈ ون آف دا ویری گڈ رپورٹس دیٹ آئی ریڈ ان پاکستان. یہ باتیں سامنے آئیں. ہم تو خیر اس وقت باقی جو آفیسرز تھے, میں تو ایک ڈپٹی کلیکٹر تھا اور کسٹم ہاؤس کراچی میں ایک نوکری کر رہا تھا, oblivious to all the happenings that were happening in the background. ایک دن اچانک مجھے کال آئی ممبر کسٹمز کی. انہوں نے کہا کہ جی آپ کو کچھ ڈاکیومنٹس بھیجے گئے ہیں اور آپ یہ پڑھ لیں اور آپ فلائٹ پکڑ کے اسلام آباد آئیں, آپ چیئرمین صاحب نے بلایا. میں ڈپٹی کلیکٹر, ٹھیک ہے, وہ پڑھیں اور پھر فلائٹ بک کروائی. ایئرپورٹ پہ مجھے ایک اور آفسر ملا, اس سے میں نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہو, اس نے کہا جی سی بی آر جا رہا ہوں, ممبر صاحب کا فون آیا تھا اور اس طرح. سو آئی انڈرسٹوڈ کہ جی دیر واز مور دین ون آفسر جس کو اس طرح کانٹیکٹ کیا گیا. ریاض ملک صاحب واز دا چیئرمین اینڈ وی میٹ ہیم, اینڈ ملک صاحب نے بتایا کہ جی اس طرح ملک کا سارا ٹیکس کا نظام ٹھیک کرنا ہے, اور یہ رپورٹس دکھائی گئیں اور پریزیڈنٹ صاحب کی طرف سے کہ جی دس ہیز ٹو بی ڈن. اور ریئلائزیشن مجھے یہ ہوئی کہ ملک صاحب نے, ہم 2 آفیسرز تھے جنہیں کسٹم سے بلایا گیا تھا, ایک میں تھا اور ایک میرے کولیگ تھے عرفان سرفراز, ون آف دا فائنسٹ آفیسرز آئی ہیو سین. ہی واز
an electrical engineer from UET initially, and then he was working in private sector on quality controls of particle per millions के levels पे काम करता था. Very very fine officer. तो मलिक साहब ने एक मुझे बुलाया था और एक इरफान को, और हमें ये टास्क दिया गया कि जी आप लोग सिस्टम स्टडी करें, ये रिपोर्ट स्टडी करें, और कस्टम्स को के रिफॉर्म्स पे हम अपनी सिफारशात पेश करेंगे बोर्ड को, चेयरमैन साहब को. चेयरमैन साहब वहाँ से वो लेके फिर आगे चलेंगे और फिर जैसे भी होगा. मलिक साहब ने मुझे क्यों पिक किया, शायद मैंने मलिक साहब के साथ इंटेलिजेंस में पहले काम किया था. मलिक साहब was one of the finest officers that I've worked with. Malik Sahab was a second generation customs officer, hands on उन्होंने customs में काम किया था. He was the type जो कि पिकअप में आगे ड्राइवर के साथ बैठ के, even as member and as chairman, he would roam around. He had no airs about him, and a very very practical, down to earth customs officer who knew his work. He was also a severely intelligent man. मतलब मलिक साहब की इंटेलिजेंस से एट टाइम्स इवन आई वाज इंटिमिडेटेड, बिकॉज आप मलिक साहब से अभी कोई बात करना शुरू करते थे तो अभी आप तमहीद बांध रहे होते थे तो वो वहाँ पहुँच गए होते थे, वो कहते थे यहाँ तक मैं समझ गया हूँ, आगे चलो. खैर, वी वर गिवन दिस टास्क ऑफ कस्टम्स रिफॉर्म्स, इसको स्टडी करना. अब ना मैं और ना इरफान, हम इस तरह के लोग नहीं थे कि जो आप हमें एक हुक्म दें और हम बगैर उसकी तहकीक की आगे चल पड़े. सो वी नीडेड टू नो फॉर आवरसेल्व्स. अब एक बड़ा कॉमन रूल ऑफ थंब है इसके लिए कस्टम्स की, अगर आपने एफिशिएंसी डिटरमिन करनी हो तो वो ये है कि जी कस्टम्स के पास कार्गो कितनी देर रुकता है, जो कि फ़र्ज़ करें दुबई से 1600-1800 किलोमीटर जो है वो 32-36 घंटे में उसने शिप पे तय कर लिया, तो जो आखिरी 2 किलोमीटर कस्टम्स में वो कार्गो खड़ा है वो कितनी देर रुक रहा है. और कस्टम्स चूँकि बड़ी इंटरनेशनल से डिपार्टमेंट है तो बाकी तमाम कस्टम्स भी वही काम कर रहे होते हैं, तो पाकिस्तान कस्टम्स के टाइम को आप डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं विद यूएस कस्टम्स एंड अदर कस्टम्स, एंड आपको अपनी एफिशिएंसी विज़-विज़ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नज़र आनी शुरू हो जाती. ये टाइम ढूंढना कोई मसला नहीं है, क्योंकि जो शिपिंग लाइंस होती हैं वो उन्होंने कंटेनर को पे डेमरेजेस चार्ज करने होते हैं, तो उनके पास राइट डाउन टू द सेकंड किस वक्त कंटेनर उतरा और किस वक्त कस्टम के गेट से निकला वो अवेलेबल होता है. अब हमने वो टर्मिनल से डेटा जो उठाया तो 50% कंटेनर्स कस्टम्स क्लियर करते थे, ये आखिरी 2 किलोमीटर कस्टम्स के. इन 2001 50% कंटेनर 12 दिन लगते थे कंटेनर को ये 2 किलोमीटर कस्टम्स के तय करने. अब न्यूयॉर्क में ये टाइम 27 मिनट, 12 दिन और 27 मिनट जस्ट मेक्स नो सेंस. एंड वेल, आप सोच रहे होंगे कि जिससे फ़र्क क्या पड़ता है. एक्चुअली इससे आपकी इकॉनमी का सत्यानाश हो जाता है. इसलिए कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जो आज की दुनिया है उसमें फ़र्ज़ करें मैं एक बॉल पॉइंट मैन्युफैक्चरर हूँ पाकिस्तान में, तो मेरा जो प्लास्टिक दाना है रॉ मटेरियल वो मुल्क से बाहर से आता है. अब अगर मेरा रॉ मटेरियल कस्टम पोर्ट पे 12 दिन खड़ा रहेगा तो इसका मतलब है कि मुझे अपनी इन्वेंट्री में फैक्ट्री में 15 दिन की इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा रखनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी प्रोडक्शन लाइन नहीं तो बंद हो जाएगी. सो एक तो मेरे पैसे उसमें इन्वेस्टेड हैं जो मैंने रॉ मटेरियल्स मंगा रहा हूँ, एक वो जो कि मेरी फैक्ट्री में अब मुझे रखना पड़ रहा है, दूसरे जो मैं डेमरेजेस की चार्जेस दे रहा हूँ, दूसरे जो मेरी बैंकिंग कॉस्ट आ रही हैं कैपिटल की. सो बाय द टाइम मैं अपना बॉल पॉइंट मैन्युफैक्चर करके इंटरनेशनल मार्केट में भेजता हूँ तो इट्स ऑलरेडी टू एक्सपेंसिव बिकॉज द कॉस्ट्स have climbed too much. A convenient example would be कि जापान imports 45% of the world's copper. और अगर जापान में dwell time 3 दिन भी हो जाए तो जापान एक पहाड़ हो कॉपर का और बंदा रखने की जगह ना हो वहाँ पे. सो आज की दुनिया में कंट्रीज़ जो हैं वो अपनी एफिशिएंसीज इस तरह मैनेज कर रही होती हैं कि दोपहर को 2 बजे जहाज़ लग रहा है और वो उस 2 बजे जो जहाज़ लग रहा है उससे जो कॉपर उतर रहा है जापान के लिए, वो जो 8 बजे जब उस जहाज़ ने सेट सेल करना है तो वो तमाम गाड़ियाँ, वो आईसीज़, वो सर्किट्स, वो ट्रांजिस्टर्स, वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, वो सेल फोन्स, वो कैमरास जिसमें सब सर्किटरी में कॉपर यूज़ होना होता है, वो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स रात को 8 बजे सेट सेल कर रही हैं. सो वो कंट्रीज़ आर लाइक ह्यूज फैक्ट्रीज विच आर
bringing in raw materials and throwing out finished products and competing in international markets. Now, customs becomes that bracket around the economy, which is the first arm of the state, which is interacting with raw materials coming into the country, and there's the last arm of the state, which is interacting with finished products leaving the country. And the moment this bracket starts going down in terms of efficiency, it drags your whole economy down. Now, इसका जो 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 पाकिस्तान की इम्पोर्ट्स थे, $4 ट्रिलियन रुपए साल की इम्पोर्ट्स थी, और इसका ह्यूज इम्पैक्ट है सोसाइटी पे, और हर शख्स को पे वो इम्पैक्ट जाता है, बिकॉज आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी इंडस्ट्री, आपकी बिजली के अलग मसाइल, बाकी मसाइल अपनी जगह, लेकिन सिंपल ये, और हम उसमें क्या ऐसे तितर मोर पिरो रहे हैं कि अमेरिकी जिसके पास हमसे 1000 गुना ज़्यादा कार्गो आता है, वो 27 मिनट में कर जाता है, और हमें 12 दिन क्यों लग रहे हैं? So obviously we started studying it. It was a horrific picture. What were we doing? There were so many reasons. आपने पाकिस्तान में तमाम सरकारी महकमों में देखा होगा, it's not peculiar to customs only, कि जी जो प्रोसेस है वो बहुत अजीब सा और कमबसम बना हुआ है। इस कागज़ की इतनी कॉपियाँ ले आएँ, इसके साथ ये डॉक्यूमेंट लगाएं, इसके साथ ये डॉक्यूमेंट लगाएं, इसके साथ ये डॉक्यूमेंट लगाएं, फिर एक पर्टिकुलर बिल्डिंग पे पहुँचे हैं, और इधर इस मेज़ पे पहुँचे हैं, और उस मेज़ पे आज पता नहीं वो साहब आए नहीं हैं या छुट्टी पे हैं, तो कल आ जाएं, और फिर वो अब अगर आपके 10 कंटेनर पोर्ट पे हैं और आपको 10,000 रुपया पर डे उस पर डैमेजेस पड़ रहे हैं, तो लाख रुपया तो आपका दिन का जा रहा है। अगर उसने सिर्फ आपको ये कह दिया कि आप कल तशरीफ़ ले आइए, तो यू लॉस्ट 100,000. So it's the process is so cumbersome, so many documentation, and Shahid Hussain committee report ने identify किया था, and then we verified it, कि एक customs की clearance जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें 34 signatures और 62 verifications होती हैं उस डॉक्यूमेंट पे before it goes to before it can be cleared. Now this is a consignment which has no problems at all. Now, so obviously हर मेज़ पे जाने की, हर बंदे के सामने के साथ ये देख लें, फिर उसने अपना टाइम लगाया, and well, I don't want to say it, but then there's a cost for every table, right? और वो चलती जा रही है, और फिर आपको डिलेस हो रही हैं. So many reasons. So we identified each one of them, and documentation record law clear नहीं है. अगर उन साहब का मूड नहीं था, उन्होंने कहा जी इस कागज़ के लिए तो आप अपने अब्बा का निकाहनामा ले आए. Now you don't know कि जी ये निकाहनामा क्यों चाहिए भाई इस काम के लिए, लेकिन आप किसके पास जाएं? So standards defined नहीं, कुछ भी नहीं. It's not peculiar to customs. Almost every सरकार का दफ्तर इसी तरह ऑपरेट कर रहा था. So we looked at this, and we went back to the chairman sahab, and we said, Kiji, by and large, this Shahid Hussain committee report is actually very, very good, and our position on ground is वाकई needs to be tremendously improved. And पाकिस्तान में कस्टम्स की स्ट्रेंथ 9,000 लोग है, और 200 मिलियन की एक पॉपुलेशन है, और इतना बड़ा इम्पैक्ट है टैक्सेशन डिपार्टमेंट्स का कि यस दिस नीड्स टू बी डन. मुझे नहीं पता कि इनकम टैक्स कौन कर रहा था और सेल्स टैक्स कौन कर रहा था, मुझे कस्टम्स की साइड पता. एंड दिस इज वेयर वी स्टार्टेड वर्किंग. सो वी वर गिवन द टास्क ऑफ कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, केयर, एंड वी वर टू गिव सजेशंस. अब हमने सजेस्ट ये किया कि भाई इस दफ्तर में, इस बिल्डिंग में कौन सी ऐसी बात है कि लोग ये सारे कागजात उठा के यहाँ लेके आते हैं. Why can't the office go to the people rather than the people coming to an office? So the system that we proposed was कि जी हम एक सर्वर इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, डिजिटल सिग्नेचर्स होने चाहिए, इंपोर्टर एक्सपोर्टर एक दफ़ा आए कस्टम हाउस, जो आपने उससे डॉक्यूमेंटेशन लेनी है, NTN लेना है, CNIC लेना है, आप डिफाइन कर लें, आप वो उससे एक दफ़ा लें, उसको एक यूज़र नेम पासवर्ड दें, और अब कस्टम्स 24/7 365 डेज जहाँ से उसने सिस्टम में लॉग इन करना है वो लॉग इन करे, सिस्टम उसे पहचानता है कि ये बंदा है, उसने गुड्स डिक्लेरेशन फाइल करनी है, जो भी पॉसिबल कस्टम वर्चुअल कस्टम्स क्रिएट करने, जो पॉसिबल कस्टम से इंटरेक्शन हो सकती है वो ओवर द वेब करेगा. ये सर्वर इंपोर्टर एक्सपोर्टर से कनेक्टेड है, यही सर्वर्स
नेशनल बैंक से कनेक्टेड हों, यही सर्वर्स शिपिंग लाइन से कनेक्टेड हों, ताकि देखिए जब कार्गो अमेरिका से बुक हुआ पाकिस्तान के लिए तो एपीएल को तो उसी वक्त पता है। सो मैनिफेस्ट इंफॉर्मेशन, बीएल इंफॉर्मेशन तो सारी की सारी जहाज आने से पहले कस्टम्स के पास पहुंची हो। दिस इज़ व्हाट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाज डूइंग, एंड वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन ब्रसल्स में में सारे स्टैंडर्ड्स बेस्ट प्रैक्टिसेस के ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड हैं, तो हमें तो पहिया नए सिरे से इन्वेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब जहाज़ आने से पहले इस सर्वर पे मैनिफेस्ट आ चुके हों, तो हम आदमी से बीएल की कॉपी मांगते क्यों हैं? अब वो जाली दे रहा है या असली दे रहा है हमें कुछ पता नहीं है। अगर डेटा फ्रॉम सोर्स एपीएल से डायरेक्टली या शिपिंग लाइन से डायरेक्टली हमारे पास आ रहा है तो ना कोई झूठ बोल सकता है, ना उसे कागज़ लाने की कोई ज़रूरत है हमारे पास। सो डॉक्यूमेंटेशंस ऑनलाइन कैप्चर हो रही हो, हमें कागज़ से कोई गर्ज नहीं है। फैसला करने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए आपको इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, पेपर की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि पेपर की वैलिडिटी वेरीफाई करना ज़्यादा मुश्किल काम है। इंफॉर्मेशन किस सोर्स से आ रही है वो वेरीफाई करना ज़्यादा आसान काम है। सो अ सर्वर एनवायरनमेंट विच इज़ कनेक्टेड टू importers, exporters, connected to banks, connected to shipping lines, connected to customs employees itself, and कनेक्टेड टू CBR's टैरिफ स्विंग्स के जिस चीज़ पे जितनी ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस हैं वो रियल टाइम डलती जा रही हैं, एंड क्लैरिटी ऑफ रोल्स के किस शख्स ने एग्जैक्टली क्या करना है। और फिर कंप्यूटराइज सिस्टम में आप ये नहीं कर सकते कि वेग सी बात लिख के चले जाएं। अगर ये न्यूमरल फील्ड है और इस पे HS कोड ही आना है तो फिर आपको वही ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपने देनी है तो वो आपने देनी है, आप उस पर चुप करके आगे नहीं निकल सकते। सो इट बिकम्स अ वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट सिस्टम। दिस इज व्हाट वी सजेस्टेड कि जी दिस इज व्हाट नीड्स टू बी डन एंड लेट्स क्रिएट। अच्छा, उस वक्त दुनिया में दो ममालिक ने यह काम करना शुरू किया, पाकिस्तान और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया। CMR उन्होंने कार्गो मैनेजमेंट री इंजीनियरिंग का सिस्टम शुरू किया। हमारा तो खैर बहुत मिनिएचर सा बजट था, टोटल $2 से $3 लाख का बजट था। ऑस्ट्रेलिया हैड अ बजट ऑफ अराउंड $550 million and obviously they were working Now, when we went to Chairman साहब and we suggested कि जी this is what needs to be done, तो problems create होना शुरू हो गए। मसला यह है कि हमारे लॉ ऐसी कोई बात अलाउ नहीं करता। लॉ के क्या मसाइल हैं? लॉ का मसला यह है कि कस्टम एक्ट जो कि 1969 उसे कहा जाता है, लेकिन एक्चुअली वो सी कस्टम एक्ट 1836 या 1832 या जो भी है उसको कॉपी पेस्ट किया हुआ। अब कानून हमारा एक लकड़ियों के जहाज़ों में रह रहा है 200 साल पीछे रह रहा है। हम खड़े हैं 2001 में जब टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो अब आप जैसे ही प्रोसेस चेंज करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले आपको कहा जाता है कि तो ये लीगल है भाई, कानून तो ये इजाज़त नहीं देता। अब पॉइंट ये है कि कानून अवाम की बेहतरी के लिए बनता है, अवाम के फ़ायदे के लिए बनता है, और कानून कंटिन्यूसली हालात के टेक्नोलॉजी के मुताबिक अपडेट किया जाता है। सो हमें कानून ठीक करने में कोई आसमान से तो नहीं उतरा, हमारा अपना कानून है। वट एवर इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड द पीपल, वी शुड जस्ट चेंज अवर लॉ अकॉर्डिंग टू इट। बट दैट्स ईजियर सेड देन डन।